Hello students, today I am going to talk about how to prepare for bank interview. This video will talk about how to prepare for bank interview. This video will be useful for SBI PO, IBPS PO, RRB PO and any other bank PO interview preparation. Before starting, let me introduce myself. I am Swapnil Tambekar. I cleared IBPS PO mains in 2014, 15, 16, 17 and 18. I appeared for the interview in 2014, 15 and 16. Also, I train students for bank interviews. I receive positive feedback from all of them. My students claim that almost 80% of questions asked in actual interview were covered in mock interview sessions. So I thought of sharing same knowledge with all of you. This video will be in two languages, Hindi and English. Please bear with me till the end. Before starting our session, let's have a quick look at the documents you need to produce at the time of interview. You need to produce interview call letter along with one photo, then ID proof, then date of birth proof. Date of birth proof can be your living certificate or 10th certificate having the same birth of date as you filled in the application form. Then 10th, 12th graduation mark list and certificates. If you don't have a graduation certificate, then you can produce your provisional degree certificate. If you belong to your other than unreserved category, then you have to produce your valid EWS or caste certificate in central government format. This is most important document. The central government format is mentioned in the notification. Please go through that. If you don't have caste certificate in central government format, then you will not be allowed to appear for the interview. So this is the most important document. If you are working in government organization, then you have to produce NOC. And if you have mentioned about work experience in the application form, then you should produce work experience certificate. So these are the important documents you need to produce at the time of interview. Let's start our today's session. What is interview? The interview is an occasion of interpersonal communication between the prospective employer and prospective candidate. It is communication, it is nothing but communication. During this process, the employer hopes to determine whether or not applicant is suitable for the job. So appearing for interview is like expressing yourself, marketing your skill sets to impress interviewer. Consider this as a one-time opportunity to impress and propose your crush. So speak every sentence, present yourself in such a manner that she will get impressed. What are the traits are being checked in interview? You are appearing for officers interview. So you are expected to have officers qualities in your personality. So what are those qualities? They will check for your body language, your mindset, your thought clarity, confidence, your reaction under stress situation, general awareness, social awareness, communication skill, or banking awareness. There is a famous quote by Dale Carnegie, who is a very famous personality in self improvement courses. There are four ways, and only four ways, in which we have contact with the world. We are evaluated and classified by these four contacts. What are those?
what we do, how we look, what we say, and how we say it. So, though these are the four contacts. What we do, what you are currently doing, you are preparing for banking exams. But if you are presently working and at the same time you are preparing for banking exam, then that will give a positive impression of you to the interviewer. How will you look? We are going to discuss this in detail. What we say, that is also we are going to discuss in detail. We have to speak every sentence in such a manner that the interviewer will get impressed. And how we say it. So there are different ways to say a single sentence or single piece of information. So we are going to deal with that a little. First, let's have a look at formal interview dress code. You are appearing for officer's interview. That means you should wear dress like officer. You should look like officer. You should talk like officer. You should behave like an officer. Dress code for males: shirts, a light or solid color, long sleeved, plain shirt, or with micro checks. Micro checks are also fine, but it should be a light or solid colored, and it should be compulsory long sleeved. Don't wear half sleeve shirts while appearing for interview. You can also go for suits and blazers. Black, navy blue, dark gray, dark brown color. These colors are fine for interview. Now, bottom wear. Wear a dark color trouser, preferably in black, gray, or blue color. Footwear, you should compulsory wear socks and match with the color of your trousers. You should wear compulsory formal shoes in black or tan color. You can complement your dress code with some accessories like tie. Color and pattern of tie should complement your shirt. Compulsory, you should wear a belt which is in black or brown color. Add finishing touch to your look with a classic watch. Don't wear very expensive watch for the interview. Always carry a pen while appearing for interview. Now, important points to remember for male interview dressing. Always wear clean and well pressed clothes. Clean and well placed. Avoid loud colors or prints in shirts. Avoid flashy ties. Do remember to wear a mild deodorant. It should be a very mild. Make sure your shoes are free from stains and dust before going into the interview room. Opt for clean shaven look, but that is not compulsory. You can also go for beard look, but your beard should be well trimmed. Apply a limited amount of aftershave. Maintain neatly trimmed nails. That is also important. Most boys ignore these things. Trim nails. Now let's have a quick look at the formal interview dress code for females.
You can opt for traditional wears like salwar kameez, or you can opt for sari. But sari should be a simple cotton sari in solid or pastel colors. You can also go for western wear like pantsuit, full sleeved or half sleeved, shirt or top with knee length pencil. Choose light and pastel shades for shirt or top with minimal print. Or you can go for formal dress, a well fitted, not tight fitted, knee length dress in a straight style is also a good option for female candidates. Footwear, formal women shoes with fairly low heel look, that is important, low heel. Go for colors like black, tan, blue, or dusky pink. Hair and makeup. Girls are really expert in this area, so I cannot say so much about this. But always wear minimal makeup. That is the most important. Minimal makeup. Choose neutral colors for nail paints. Now, talking about hairstyle, hair should be neatly styled in a basic manner. Generally, a low or high ponytail looks good with suits and skirts. You can also opt for a well combed straight hair look. Now, important points to remember for female interview dressing. Make sure your outfit is neat, clean, and well pressed. The same applies for boys also. Avoid wearing sleeveless shirts and suits. Don't go for sleeveless shirt. Wear a mild deodorant or perfume, or you can totally ignore this part. Make sure your hair is fresh and clean. Avoid hair accessories that are flashy or shiny. Now, how to present yourself in front of interview panel. Your body language talks more than your words. So body language is very important. So body language includes everything from entering the room to leaving the interview room. Before interview, how to position yourself, how to position the file in your hand, that is also important. So you should position your file in a elegant way. You can you can take the file in single hand or you can use your both hands. Before entering into the interview room, don't forget to knock on the door. Just 2 3 knocks are sufficient, and then open the door and politely ask for the permission to enter. After entering in the room, greet panel members. Now, this is tricky part. Since there are 6 or 7 panelists in your interview panel, then how to greet them? The best way to greet the panel members is good morning, good afternoon, good evening, everyone. That is the best way. And if there is a single lady present in the interview panel, then it is
it is more formal to greet the lady first. For example, good evening madam, good afternoon madam. Then you can greet other members one by one, or good evening everyone, or good afternoon everyone, depending on the time of the day. So greeting is very important. Don't forget to greet panelists. After entering the room, stand near the chair and wait for 30 seconds. They will definitely offer you a chair, and if they are not offering you a chair, then politely ask for the permission. Don't don't change the position of chair. It is very important because the chair is strategically positioned in such a way that all panel members can examine you. So don't change the position of chair. Sit straight, slightly leaning towards the interviewer. Don't cross your legs. You should always maintain eye contact with interviewer. So these are the basic things that will be checked. So during interview, you should always maintain eye contact with all the panelists. Avoid playing with your hairs. This particularly happens a lot with girls. So avoid playing with hairs. Let interviewer complete the question, then you can answer the question. If you don't know the answer, then you can politely say, sorry sir, I am unable to answer this question, or sorry sir, I am unable to recall this information right now. If you want interviewer repeat the question, then you can politely ask for the same. Sir, I beg your pardon. Could you repeat the question? The most important part in body language is always wear a smile. No matter what, you should always wear a smile that will give a positive impression of your personality. You should not feel nervous, or you should not look nervous in front of the panel. So sit up straight in the chair, keep your arms and leg uncrossed. Do not stuff your fingers in your pocket or grip your fingers tightly. So I observed that many students grip their fingers tightly, and they are not aware of this thing. So avoid gripping your fingers tightly, not occasionally, to show interest in the conversation. Be graceful, be careful while leaving the interview room, and also be careful while entering the room. You should have positive body language throughout the interview, but if you don't answer the questions asked by interviewer in satisfying way, then this positive body language is not going to help you. So now I am going to discuss some questions that may come in actual interview. Now first have a look at types of interview questions. So there are different six types of questions that are being asked in any bank interview. The first type is personal questions.
So these are typical questions like introduce yourself, why did you choose career in banking sector, tell me about your strengths, hobbies, etc. We are going into detail about these particular questions in subsequent slides. Then banking or finance related question, financial awareness. Since you are appearing for a banking interview, so you can always expect few banking related questions. They will not go into detail. For example, they will ask some simple questions like what is repo rate, what is reverse repo rate, tell me the functions of RBI, tell me something about NABARD, tell me something about SIDBI. So these are the basic questions. They will not go into detail. I have observed many students preparing for banking awareness for the sake of interview in very detail, but I think that is not needed for interview. Just have a basic knowledge about banking and finance because you are appearing for banking interview. Irrespective of your background, they will ask some questions on financial awareness also. So they may ask question like, have you heard about balance sheet? Was it what is it? So this question can be asked to any graduate. So we prepared some basic terminology from finance sector and banking sector. There are lots of good YouTube videos available on on internet platform, so you can always go through that. Then third type of question is general questions. So I'm also going to talk about general questions in detail in subsequent slides. So general questions means tell me something about your district, about your city, and if you are from politically active area, may ask some political questions. So these are some general questions. Then situation based questions. These are very important questions, situation based. Now what they may ask in this type of question and why they will ask. So for example, they will tell you that पीओ बनने के बाद आपको रूरल एरिया में पोस्टिंग मिला है। रूरल एरिया में आप हमारा जो प्रोडक्ट है, बैंक का प्रोडक्ट तो लोन ही रहता है बेसिकली। तो वो जो लोन है उसका आप कैंपेनिंग कैसे करोगे? सो दैट इज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। एंड व्हाई दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन? बिकॉज दे वांट टू check two important aspect of your personality. The first is decision making. मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्विकली डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये कैंपेन आपको अगर करना होगा तो कैसे करना है, मतलब उसके लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। ये आपको विद इन 1 मिनट आपको ये आपके मन में उसका फ्लो चार्ट आना चाहिए और आपको क्विकली वो जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है वो आपको पैनल के सामने रखना पड़ेगा। सो डिसीजन मेकिंग, और इसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है आपकी थॉट क्लैरिटी। मतलब आपने तो बहुत सोचा कि कैसे कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन आप वो ठीक तरह से पैनल के सामने रख पाते हैं या फिर नहीं, ये भी इसमें से ही चेक किया जाएगा। सो ऑलवेज एक्सपेक्ट अ सिंगल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू। यहाँ पे आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज
if you want to start a business, then the first thing you need is capital. Then how you will get the capital? Now, to answer this question, you should have some basic knowledge like लोन कैसे मिलता है। आपके पास अगर कैपिटल नहीं है और आपके पास कोई मॉर्गेज भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स है, उसके थ्रू भी आप ये लोन ले सकते हो, जैसे कि मुद्रा स्कीम। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सपोज a drunken customer comes in your branch and demands all his money immediately, then what will you do in this case? So इसमें आपको डिसीजन मेकिंग और थॉट क्लियरिटी दोनों भी यहाँ पे चेक होगा। आपको क्विकली इसका आंसर देना चाहिए, क्विकली डिसीजन लेके आपको ये आपके पैनल के सामने ये आंसर आपका रखना पड़ेगा। देन academic questions. एकेडमिक क्वेश्चन ये जो स्टूडेंट्स अभी अभी पास आउट हुए हैं, फ्रेशर से, उन्हें पूछे जाते हैं। अगर आपको 2 या 3 साल हो चुके हैं तो आपको ये एकेडमिक क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है। अगर 2-3 साल बाद आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पोलाइटली कह सकते हैं कि सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल माई एकेडमिक नॉलेज राइट नाउ। आप ऐसे पोलाइटली कह सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन दैट यू शुड नो ऑल योर एकेडमिक सब्जेक्ट व्हाइल अपेयरिंग फॉर बैंक इंटरव्यू। बट इफ यू आर अ फ्रेशर, तो उस केस में क्या होता है कि आपके साथ इंटरव्यूअर को आगे बढ़ने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। मतलब आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहता। अगर आपको कोई अचीवमेंट हो तो अचीवमेंट पे बोलेंगे, अगर आपके कुछ अचीवमेंट भी नहीं है तो क्या बचा है? तो आपके एकेडमिक बचा है। सो एकेडमिक के क्वेश्चन वो डेफिनेटली गूगल करके आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। वो भी यही करते हैं, गूगल करते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मैकेनिकल के कुछ गूगल करके क्वेश्चन निकालते हैं और डायरेक्टली पूछ लेते हैं। उसका आंसर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन आप उसका आंसर कैसे देते हो, आपकी थॉट क्लैरिटी है या फिर नहीं, ये यहाँ पे चेक किया जाता है। एंड द लास्ट पार्ट इज करंट इश्यूज। सो अभी करंट इश्यू कौन सा चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर करंट इश्यू का प्रिपरेशन आपको कुछ पता होगा, प्रिपरेशन करके वहां पे जाते हैं, तो डेफिनेटली इसका आप आंसर दे सकते हो। मतलब जो जो करंट इश्यूज उस समय रहते हैं वो आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेट न्यूट्रलिटी का अभी कुछ 2 साल पहले था। अभी अभी फार्मर्स बिल चल रहा है, तो इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आपको ये जो करंट इश्यू है ना उसके बारे में बस आपको 2 मिनट तक बातें करनी है, सिर्फ 2 मिनट तक। 1 या 2 मिनट दैट इज सफिशिएंट, आपको डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक आपको बात मैं बताता हूँ, अगर कोई कंटेंशियस टॉपिक रहता है तो उस पे आपका ओपिनियन नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स बिल पे आपका ओपिनियन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फार्मर्स बिल पे आपको कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स पूछे जाएंगे। वो उनके आंसर आपको देना, आपको आंसर पता रहना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पर्सनल क्वेश्चंस एंड जनरल क्वेश्चंस। सो पहले हम जाते हैं पर्सनल क्वेश्चन की ओर। So these are the most important interview questions, like introduce yourself, why did you choose career in banking sector, what is your strength, weakness, why we should hire you, where do you see yourself after 5 years, can you work under pressure, what are your hobbies। So ये जो questions है ना वो कभी change नहीं होती। आपको इसका प्रिपरेशन अभी करना है। हर एक इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चंस
डेफिनेटली पूछे जाएंगे। कोई भी अगर आपका इंटरव्यू हो, आपका प्रमोशन के लिए होता है, आपका या फिर आरबीआई के लिए होता है, किसी भी जगह आपको जाओ, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होने वाले। सो व्हाट आई वांट यू टू डू, आपको ये जो क्वेश्चन है ना, इनके आंसर राइट डाउन करने हैं, लिखने हैं नोटबुक में। एक परमानेंट नोटबुक आपको इसके लिए चाहिए, और उसमें इसके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे कंपलसरी। फर्स्ट आंसर जो आप लिखने वाले हैं वो आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। आपको 10-12 बार रीड करने के बाद उसका वो छोटा सा अब्रीज वर्जन जो रहता है ना, वो आपका आंसर रहेगा। सो कंपलसरी इसके आंसर आपको एक नोटबुक में नोट डाउन करने हैं कंपलसरी। और हर बार जब आपका इंटरव्यू होगा तो जस्ट गो थ्रू दैट नोटबुक, देन आपको सब कुछ वो याद आ जाएगा, आपकी प्रिपरेशन, और आपको उस इंटरव्यू में उसका फायदा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ ये क्वेश्चन हर एक को नहीं पूछा जाता, ये कुछ लकी होते हैं ना बच्चे, लकी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनको ये पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इफ यू गेट दिस क्वेश्चन, दैट देन कंसिडर योरसेल्फ द luckiest पर्सन। सो आपको ये इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हर बार नई क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको जब ये मिलेगा ना, तो आपको इस पे सिक्सर मारना है। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो इसका कुछ ऐसा आप आंसर वहां पे देने वाले हैं ना, कि उसके वजह से आपको कुछ वो नए क्वेश्चंस क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको सोच समझ कर इसका आंसर तैयार करना है। तो मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, इस सीक्वेंस में आपका ये आंसर आपको तैयार करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू कवर इन दिस introduction? Name, then place, then family, qualification, additional qualification if you have any, like post graduation, or if you did any certification course, then experience if you have any, achievements, hobby, short term aim and long term aim। ये जो सीक्वेंस है ना, आपको ये फॉलो करना है इंट्रोडक्शन बताते वक्त। आपको मैं एक सैम्पल इंट्रोडक्शन बताता हूँ। मैंने ये सभी पॉइंट इसमें कवर किए, बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर एक पॉइंट इसमें से कवर कर दो। आप इसमें से कुछ पॉइंट स्किप भी कर सकते हो। लेकिन सीक्वेंस ये जो है ना, नेम, प्लेस, फैमिली, क्वालिफिकेशन, ये सीक्वेंस आपको यही रखना है। तो हम आंसर कैसे तैयार करेंगे? तो एक आपको मैं सैम्पल आंसर बताता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, देन आपको इसका आंसर कैसे देना है। हेलो सर, मैडम, इट्स माय प्लेजर टू स्पीक विथ यू। आई एम एबीसी। बेसिकली आई बिलोंग टू XYZ city. I have been living in this city for 4 years now. I stay with my family. Besides my parents, there is a younger brother in my family. Currently, I am exploring job opportunities in banking sector. I am very interested in banking sector. That was the reason I chose to pursue career in banking sector. Before that, I was working in PQR company as your post if you are working. Huh? During my previous job, I got exposure to customer interaction that hone my communication and people handling skill. If you are experienced, then you can directly mention your experience. Like this candidate mentioned his experience. Before that, I was working in company as a relationship officer or any manager as a manager. So आपको ये जॉब करते वक्त आपको क्या एक्सपोजर मिला, उसका आपको क्या फायदा हुआ, और उसका आप बैंक को कैसे फायदा उसका बैंक को कैसे फायदा होगा।
ये भी आपको वहां पे बताना होगा, इनडायरेक्टली बताना होगा। यहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली क्या बोला है, दैट होन माई कम्युनिकेशन एंड पीपल हैंडलिंग स्किल। सो बैंक में क्या रहता है, बैंक में तो एक कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए ना, आपको कस्टमर हैंडल करने पड़ते हैं, पीपल हैंडलिंग स्किल चाहिए। सो ये इनडायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप फ्रेशर हो तो ये जो पार्ट है वो सबको कॉमन होगा। उसके बाद नॉट ओनली आई एम पैशनेट अबाउट बैंकिंग सेक्टर, आई एम ऑल्सो inclined towards creative activities such as dancing, painting, acting, etc. I have always been an active student in school and college. I have participated in many cultural events during my school and college days and have won many awards. सो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपका अचीवमेंट आपने बताया है। सो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई अचीवमेंट नहीं होता। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, अगर कोई भी अचीवमेंट ना हो ना तो आपको कुछ ना कुछ आपके अचीवमेंट बताने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है इंटरव्यू आगे ले जाने के लिए, तो आपको क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो बैंकिंग अवेयरनेस से आ सकते हैं या फिर आपके एकेडमिक के आ सकते हैं। सो आपको आपके अचीवमेंट्स के कुछ पॉइंट यहाँ पे बताने पड़ेंगे। इफ यू आर गुड एट डांसिंग, अगर आप में कोई कंपटीशन जीता है, इफ यू आर अ नेशनल प्लेयर ऑफ सम स्पोर्ट, देन डू मेंशन दैट थिंग, and do mention that thing very proudly. I'm a national player of Kho. I played at this level. I got that rank. So आपको ये फुल प्राउड प्राउड होके बताना है। तो डेफिनेटली आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको आपके एरिया पे आएंगे। मतलब आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अपना इंटरव्यू खुद ड्राइव करेंगे, किधर जाना है आप डिसाइड करेंगे। आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एक क्वेश्चन आता है तो इसलिए आपको जो पॉइंट देना है उनको आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही सोच समझ कर आपको ये पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मेरे कुछ एक्टिविटीज यहाँ मैंने लिख दी है, तो आपको कोई अगर अदर एक्टिविटी हो तो आप मेंशन कीजिए। और अगर आप एक्सपीरियंस हो आपको तो वो भी आप मेंशन कीजिए, ताकि वो आपको क्वेश्चन जो है ना वो आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड पूछेंगे। Apart from that, you can also mention, in my free time, I enjoy going out with friends and trying new cuisines. I also enjoy watching movies, listening to music, reading, working out and going on road trips. इसका मतलब आप बोरिंग से पर्सन नहीं हो। आप बैंक में अगर रहते हो तो बैंक में तो हर तरह के कस्टमर आते हैं, तो आप एक जिंदा दिल आदमी हो, ये इससे पता चलता है। दैट्स ऑल अबाउट मी। आई विल बी हैप्पी टू आंसर मोर क्वेश्चंस। ऐसे बोल के आप अपना इंट्रोडक्शन एंड कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने ये जो सीक्वेंस कहा है आपको, ये आपको फॉलो करना है। नेम, प्लेस, फैमिली, क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपको अचीवमेंट्स यहाँ पे हाईलाइट करने होंगे। और एक्सपीरियंस और अचीवमेंट ऐसे हाईलाइट करने होंगे ना, तो उसमें से आपके ये जो क्वालिटीज बैंकर्स में रहती है, फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, ये यहाँ पे हाईलाइट होनी चाहिए। ऐसे आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर हॉबी है तो हॉबी मेंशन कीजिए। अगर आपको कोई हॉबी नहीं है तो आप हॉबी के बारे में मत बोलना। शॉर्ट टर्म एम अगर हो आपका तो आप मेंशन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म एम अगर रहेगा तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, बट इट शुड बी रिलेटेड बैंकिंग इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स short term aim is to get selected in public sector bank, and long term aim is to reach at the scale 3, 4, 5 as early as possible. That is your professional goal. Also make sure to have a personal goal, because they may ask sometime that you are only telling us about your professional goal. What about your personal life? You are not going. You are not going to marry.
Yes, of course you are going to marry. Then you should have your personal goals as well. And of course, don't mention personal goals first. You have to mention the professional goals first. Then you have to go for personal goals. So this is the most important question. This question will drive your interview. हर एक बंदा लकी नहीं होता. जो लकी होता है उसको ये क्वेश्चन आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Then the most important question, why did you choose career in banking sector? इसका आंसर आपको कैसे देना होगा? तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे इंटरनेट पे आंसर्स देखे हैं. आपने भी वो चेक चेक किया होगा. तो वो जो रटा रटा हुआ आंसर रहता है ना, वो मत देना. क्योंकि इंटरव्यूअर, उन्हें पता है इसका आंसर क्या है. अरे जॉब मार्केट में जॉब नहीं है. अगर कोई जॉब मिलता है तो इसमें सैलरी कम मिलती है, ये हर एक को पता है. जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए वो पूछ रहे हैं कि आप बैंकिंग में ही करियर करना क्यों चाहते हैं. तो अगर आपने कुछ गलत कह दिया ना, तो आपको उसमें बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे. अगर आपने ये टिपिकल रटा हुआ आंसर दिया तो आपको छोड़ देंगे, चलो इसने भी रटा हुआ है, चलो कुछ खास नहीं है. लेकिन आपने कुछ क्रिएटिव आंसर दिया तो वो डेफिनेटली खुश होंगे. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आने का मतलब इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हर एक को एक क्वेश्चन और हर एक का आंसर वही रहता है. बट इन केस आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको कैसे देना है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर इसका आपका प्रिपरेशन हो जाए ना, तो इसके इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार आप बहुत सारे जो सब क्वेश्चन है उसके भी आंसर दे सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स ड्रॉ की है. ये सर्कल है आपका सपोज स्किल सेट. ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्किल सेट. मतलब आपके कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर आपका कोई भी स्किल. आप डांसर हो, सिंगिंग हो, कोई भी स्किल. ये जो सर्कल है ना, उसे मैं बोलता हूँ आपका इंटरेस्ट एरिया. मतलब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास डांसिंग का स्किल है, लेकिन आपको डांस करना नहीं आता, तो ये इधर इधर नहीं आएगा ना. आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन लोगों से बातें करना आपको पसंद नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट एरिया में नहीं आएगा. तो स्किल सेट ये डिफरेंट थिंग है, और आपका इंटरेस्ट ये डिफरेंट थिंग है. उसके बाद ये जो थर्ड सर्कल है ना, उसे मैं बोलता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक. बैंक को क्या चाहिए, एक एम्प्लॉय से बैंक को क्या चाहिए. तो अगर आप ऑफिसर बनोगे तो आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए. आपको लोगों को हैंडल करना करना आना चाहिए, पीपल हैंडलिंग स्किल रहना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी रहना चाहिए. आप टीम प्लेयर रहना चाहिए आपको. तो ये सर्कल में से यहाँ पे जो कॉमन होगा ना एरिया, उस पे वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा. व्हाई डिड यू चूज करियर इन बैंकिंग सेक्टर. तो आपका स्किल है कम्युनिकेशन स्किल. आपको लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, और बैंक के लिए भी ये बहुत जरूरी है ना. आपको कम्युनिकेशन अच्छा आना चाहिए, आपको लोगों से बातें करना अच्छा आना चाहिए, आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए, दिन भर आप बहुत सारे कस्टमर हैंडल करने वाले हो, और बैंक की रिक्वायरमेंट भी यही है. तो हो गया आपका आंसर. सर, आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, आई लाइक टू इंटरेक्ट विथ पीपल, एंड बैंकिंग सेक्टर requires good communication skill. That's why I choose to do career in banking sector. हो गया आंसर. ओके, सो ठीक से हम फिर से इसे बनाते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको ये आंसर कैसे देना है.
नाउ हम थोड़ा सा पॉलिश करेंगे हाउ टू से द सेम इंफॉर्मेशन, हाउ टू से इट। इंफॉर्मेशन तो वही है, लेकिन मैं हटके अंदाज में ये इसका आंसर देने वाला हूँ। Why did you choose career in banking sector? If interviewer asks this question, then start your answer with this sentence. Sir, there are three reasons to choose career in banking sector. आपने थ्री रीजंस पहले ही बता दिया है, तो आपको ये तीन रीजंस बताने का मौका मिल जाएगा। सो विच आर दोस? आपको यहाँ पे कोई मेलोड्रामेटिक आंसर नहीं देना है, फैक्चुअल आंसर भी देना है। तो कैसे हम देंगे? फर्स्ट रीजन इज ऑब्वियस, as career in banking sector is a lucrative career option nowadays, and it offers tremendous career growth to those who deserve it. That is a well-known answer. Now, I'm diverting from the well-known answer from here. Apart from this, it offers good salary package and respect in society. That is also well-known. I want to financially support my family as early as possible. So financially support तो करना चाहिए ना आपको फैमिली को। That is the most important thing for you right now. जॉब मिलना चाहिए, आप बेरोजगार हो अभी, आपकी ये जरूरत है, ये जॉब, ये इसका सही आंसर हुआ। आपको ये नीड है आपकी। आपने दो रीजन भी, अभी तीसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर, माई स्किल सेट्स मैच with the job requirement of banker. I'm aware that banking sector is a service sector where I will be dealing with lots of customers every day. In order to survive and thrive in this sector, one needs good communication and interpersonal skill, a go-getter approach, and I'm quite good at all these things. I like to communicate with people. Due to all these reasons, I choose career in banking sector. That is a well that is a well written answer, well crafted answer for this question. Why did you choose career in banking sector? तो इस पे सब क्वेश्चन क्या आ सकता है? नहीं ना, सभी तो हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं क्वेश्चंस। आपको अगर पूछा जाए कि आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ा, तो ऑब्वियसली यही आंसर दे देना। Career in banking sector is a lucrative career option nowadays. It offers tremendous career growth, which I was not getting in my previous job. तो हो गया आगे वाला आंसर। Why you left your previous job? इसका ही आंसर हो गया। Why should we hire you? इसका भी यही आंसर है। My skill sets match with the job requirement of banker. I am aware that banking sector is a service sector. इसका भी यही आंसर दे दो। मतलब ये आंसर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस इसे कॉपी मत करना। आपका खुद का आंसर कैसे निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो तीन सर्कल्स है ना, स्किल सेट, इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक, इसके बीच वाला जो पार्ट रहता है ना, उस यहाँ पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। बस कॉपी मत करना, एक हटके अंदाज में आप इसका आंसर लिखना, लेकिन ज्यादा मेलोड्रामेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर वीकनेस? तो वीकनेस आपको क्या बताना है? आपको सिर्फ एक ही वीकनेस, स्ट्रेंथ तो हर कोई बोल देता है, हार्ड वर्किंग, लीडरशिप, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप स्ट्रेंथ बताओगे कि आई हैव गुड लीडरशिप क्वालिटी, तो डेफिनेटली उस पर सब क्वेश्चन आ जाएगा कि लीडरशिप क्वालिटी कहाँ एग्जिबिट की है। आपको अगर पूछा जाए कि आपका वीकनेस क्या है, तो एक ऐसा वीकनेस बता देना चाहिए आपको जिसका और बैंकिंग सेक्टर का, मतलब जॉब का, दूर दूर तक संबंध नहीं है। ऐसा ऐसा आपको बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बैड हैंड राइटिंग। अभी तो बैंक में सभी कंप्यूटराइज हुआ है ना, तो कंप्यूटर पे काम चलता है, हैंड राइटिंग का कुछ वहां पे लेना देना नहीं होता। सो बैड हैंड राइटिंग, इट इज अ गुड वीकनेस। और इफ यू आर ओबेस, देन ओबेसिटी इज योर वीकनेस। एंड
You are currently working to improve your weakness, that is also a good sign. आप यहाँ पे मतलब प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बैड हैंड राइटिंग बोल दिया, और आपको जो फॉर्म रहता है ना, तो उसमें वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहता है, वहां पे अगर आप बहुत सारा आपने सुंदर हस्ताक्षर में लिखा होगा, तो वो आप पता चल जाएगा इंटरव्यूअर को कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। व्हाट इज योर वीकनेस आंसर। बस यहाँ पे कुछ निगेटिव मत बोलना। निगेटिव मतलब आई हैव वेरी बैड टेम्पर, आई गेट इजीली एंग्री, आई गेट इजीली नर्वस, ऐसे कुछ आंसर मत देना। निगेटिव आपको कुछ भी बोलना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। आपको, आपने ग्रोथ के लिए बैंक ज्वाइन किया है, तो आपको पता रहना चाहिए कि 5 साल बाद आप कहाँ तक जाओगे। तो आप यहाँ पे तो स्केल 1 तक जाओगे, स्केल 1 आप ज्वाइन हो जाओगे। यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे स्केल रहते हैं ना, तो 5 years में आप कहाँ तक जाओगे। आप स्केल 2 या फिर 3 तक जाओगे, स्केल 3 स्केल 4 आप बता देना। और ग्रोथ मतलब यहाँ पे ग्रोथ कैसी होती है ये भी आपको पता रहना चाहिए। स्केल 1 से स्केल 2 बनने के लिए कुछ बैंकों में 2 साल बाद एग्जाम होती है, आपको JIB क्लियर करनी पड़ती है, CAIIB क्लियर करनी पड़ती है, ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। प्लस आपको प्रमोशन एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है। तो इसका एक फैक्चुअल आंसर देना, कोई भी मेलोड्रामेटिक आंसर मत देना। व्हाट आर योर हॉबीज। पहले मैं बता चुका हूँ, आपका जो हॉबी रहता है ना, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड हैव अ हॉबी। इफ यू डोंट हैव अ हॉबी, देन यू कैन से दैट सर आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर हॉबी, बट आई एम इंटरेस्टेड इन लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक searching new information on internet. I am interested in playing cricket। या आप इंटरेस्ट की बातें बोल सकते हो, कोई इंफॉर्मेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने हॉबी बता दिया, तो इस उसके बारे में आपको सभी इंफॉर्मेशन परफेक्ट पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने हॉबी बताया आपका क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। सो बीइंग क्रिकेट एंथुसियास्टिक, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी न्यू रूल्स कौन से इंप्लीमेंट हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉल रहता है उसका सरकमफेरेंस कितना रहता है, उसका डायमीटर कितना रहता है, जो पिच है उसकी लेंथ क्या रहती है, कितने यार्ड का रहता है। ये जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं ना, वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपका कोई डिफरेंट गेम है, सपोज आपको खो खो गेम है या फिर आपका कबड्डी है गेम है, तो उसके बारे में आपको सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके जो ग्राउंड रहता है उस ग्राउंड के मेजरमेंट पता होना चाहिए आपको। प्लस जो फेमस पर्सनालिटीज रहते हैं, इंडियन फॉरेन, वो आपको पता रहने चाहिए। मतलब हॉबी के बारे में आपको बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने रीडिंग बुक्स ये हॉबी बता दिया ना, तो सामने वाला बहुत खुश हो जाएगा और आपको इतने सारे क्वेश्चन पूछेगा रीडिंग बुक्स के बारे में, क्योंकि सामने जो इंटरव्यूअर होंगे ना वो बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए। उनके वक्त तो ये गैजेट्स नहीं थे, मोबाइल एक्सेट्रा, वो तो रीडिंग करके ही बड़े हुए। तो डेफिनेटली वो लेटेस्ट बुक के बारे में पूछेंगे, उसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा, किस टाइप के बुक्स आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हॉबी आपको बताते वक्त बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने हॉबी बोल दिया तो उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। और इस हॉबी से आपको क्या फायदा होता है ये भी आपको बताना होगा। Next question is, how will your academic knowledge be helpful
in the banking career. तो इसका आंसर भी आपको बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलना नहीं है। आपको पता रहना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में जो आपका एकेडमिक रहता है उसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। बस आप बोलने के लिए कुछ भी मत बोलना। वहाँ पे हर एक काम के लिए स्पेशलिस्ट होता है। तो आप कुछ ऐसा बड़ा चढ़ा के मत बोलना। लेकिन आप ऐसे कुछ बातें बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आप ये बात बोल सकते हो, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो इफ any mechanical project comes to our branch for the loan purpose, then I can evaluate and assess that loan proposal easily. So this is the one benefit that you will be getting of your academic background. If you are a civil engineer, then also you can say the same thing. मगर आप कोई साइंस बीएससी आपने सपोज फिजिक्स में किया है, केमिस्ट्री में किया है, तो इसका तो डायरेक्ट कुछ एप्लीकेशन बैंकिंग सेक्टर में नहीं है। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि सर मैंने ये जो ग्रेजुएशन किया है इसका डायरेक्ट तो एप्लीकेशन बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, लेकिन ये जो ग्रेजुएशन करते वक्त जो मैंने स्किल सेट अपने अंदर तैयार की है उसका मुझे फायदा बैंकिंग सेक्टर में होगा। ऐसे आप इसका आंसर तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग आफ्टर ग्रेजुएशन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना, तो अभी सपोज 2021 में इंटरव्यू हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ पे होंगे पास आउट होने वाले? 2019 के हो गए, 2018 के हो गए, कुछ 17 के हो गए, कुछ 20 के भी हो गए। अगर आप 2020 के पास आउट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अगर 19, 18 और 17 के हो तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग आफ्टर ग्रेजुएशन? अगर आपने कह दिया सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स आफ्टर माई ग्रेजुएशन, देन देर इज अ नो इशू। बट अगर आपने इसका आंसर थोड़ा अलग तरीके से दिया और आपने कह दिया सर I am preparing for banking exam. At the same time, I am imparting tuitions to the children of 8th, 9th and 10th standard, and I am also supporting my family. So इस आंसर से ये पता चलेगा कि आप सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है ना, आपके घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की, ये भी आप अच्छी तरह से निभा रहे हो। तो इसका आंसर डेफिनेटली आप ऐसे दे सकते हैं, बस मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ऐसा मत बोल दीजिए। अगर आप 2018 से लास्ट 3 ईयर से कर रहे हो, 4 ईयर से कर रहे हो, ऐसे मत बोलना। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से दैट, देखो ट्यूशन लेने में मतलब हर कोई ले सकता है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड की, उसमें अच्छी खासी आपको अर्निंग भी हो सकती है। आप बोल देना ना आई एम अर्निंग अराउंड 10 to 15,000 पर मंथ, वो थोड़े आने वाले चेक करने के लिए, लेकिन आपका एक इम्प्रेशन यहाँ पे बहुत अच्छा बनेगा। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ गैप ऑफ 1 or 2 years ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन? अगर आप ईयर डाउन हो चुके हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आपको ये गैप दिखेगा आपके मार्क लिस्ट पे, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो रेगुलर आंसर होगा कि सर मैं दैट वाज ऑल माय फॉल्ट, आई ignored the study during those days and I accept my failure, ऐसे आपने बोल दिया तो दिक्कत आ सकती है। ऐसे सेम इंफॉर्मेशन आप थोड़ा अलग हटके से कहना,
कैसे बोल सकते हैं हम? सर, ड्यूरिंग 4 days बिफोर फाइनल एग्जाम्स I got I got sick and admitted into the hospital. That's why I couldn't prepare for the exams and I failed all the subject. I was barely able to sit in the examination hall, but since I was not prepared, I failed in that semester, which resulted in the gap of 1 year. तो आप ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थोड़ी चेक करने आने वाले हैं, लेकिन आपको वो डिसीज क्या हुआ है, इसके सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कौन सा डिसीज हुआ था, उसके बारे में आपको जरा डीप में नॉलेज रहना चाहिए। अभी हम लास्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चंस ऑन जनरल सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी ये जनरल क्वेश्चन कौन से रहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है क्वेश्चन, वो आपका सिटी रिलेटेड रहता है, मतलब आप कहाँ से हो, इस एरिया में से क्वेश्चन बहुत सारे तैयार होते हैं। क्योंकि बेसिकली आप जो जहाँ पे इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, उसी स्टेट में से, उसी इलाके से इंटरव्यू पैनलिस्ट भी होते हैं। तो उनको उस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है। 6-7 इंटरव्यू पैनलिस्ट रहते हैं, तो हर एक को कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन रहती ही है। उन्होंने उस सिटी में, आपकी सिटी में भी वहाँ पे उन्होंने काम किया होगा, क्योंकि और ऐसे भी हो सकते हैं उनके कोई कलीग है, वो भी वहाँ पे वर्किंग होते होंगे। तो उनको इस बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो सिटी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? सिटी सिटी पे आपके सब, मतलब सिटी में आपकी फेमस कौन है, फेमस पर्सनालिटी बताइए। देन मतलब फेमस प्लेसेस के बारे में पूछेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेंगे आपके। प्लस अगर आपने ग्रेजुएशन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में से किया है, तो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या वहाँ पे कोई स्पेशलिटी होगी तो उस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे कोई जीआई टैग मिला है, या फिर कुछ न्यू स्कीम लॉन्च हुई है रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओवरऑल उस एरिया की इकोनॉमी कैसे चलती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब सपोज इफ यू आर फ्रॉम कोल्हापुर, देन कोल्हापुर के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? वहाँ पे इकोनॉमी किस पे चलती है? शुगर मिल्स पे। तो शुगर मिल की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कि शुगर मिल के बारे में क्वेश्चन तो पक्का आएगा, क्योंकि यहाँ पे शुगर मिल ज़्यादा है, फार्मर्स यहाँ पे ज़्यादा है, फार्मिंग पे क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। आपका बैकग्राउंड रहता है फार्मिंग का, तो आपको फार्मिंग के बारे में बहुत सारे डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये पता रहना चाहिए, अगर आपके पिताजी फार्मर है, तो आपको वो व्हाट दे आर कल्टीवेटिंग इन इन देयर लैंड, ये भी आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई आपके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में, जिसे हम एमआईडीसी बोलते हैं, सो इसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में। मतलब वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, फाउंड्री इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये आपको पता रहना चाहिए। प्लस वहाँ पे फेमस कंपनीज कौन सी है आपके इंडस्ट्रियल एरिया में, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा आप जिस एरिया में रहते हो, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो प्रॉब्लम के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी आपको इंटरव्यू पैनल को बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी टेक्सटाइल सिटी में रहते हो,
तो टेक्सटाइल सिटी में प्रॉब्लम्स रहते हैं, लाइक करंटली रिसेशन इज गोइंग ऑन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो रिसेशन के रीजंस क्या है? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर फ्रॉम मिसलगंज, दे में आई आस्क फॉर द क्वेश्चंस लाइक व्हाई देयर इज अ रिसेशन इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो आपको इसके रीजंस, प्रॉपर रीजंस पता रहने चाहिए। देन दे में आस्क फॉर द सॉल्यूशन, तो इस पे सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, तो वो गवर्नमेंट की स्कीम क्या है अभी, ये भी आपको इंफॉर्मेशन निकाल के रखनी पड़ेगी। तो सिटी के बारे में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके पिताजी फार्मर है तो फार्मिंग के बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपके पिताजी का जो भी ऑक्यूपेशन होगा उसके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके बारे में आप उनसे बात कर लेना, और इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके उतनी लेकर रखना। तो ये जनरल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस तहसील में रहते हो, वहाँ पे क्या चल रहा है, आपका एमएलए कौन सा है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए। आप कोई पर्सनल मतलब पॉलिटिशियन कोई फेमस है, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालना। कोई स्पोर्ट्स पर्सन फेमस है, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालना। इंडस्ट्री कौन सी है, बिग इंडस्ट्री कौन सी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। इस पे डिपेंड, मतलब इससे पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। बाकी एरिया पे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन इस बारे में, इस एरिया में क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। इसके लिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप भले ही बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन थोड़ी कम करना, लेकिन इस एरिया की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर लेना। तो इंटरव्यू के लिए मैंने जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, and thanks for watching this video, and all the best for interview. Please share your interview experience in the comment section. Thank you.